Good morning, students. This session is for class 8 science, and we are continuously studying chapter 11, that is force and pressure. Students, in last class we have completed the definition of force and then effect of force. Okay, and there was a table, we have completed that table. Okay, that is actually table number 11.1. You can see here we have completed this table. Okay, so I hope you have completed. If there is any confusion, you can discuss with us in online class. Okay, so today we are going to study the topic, that is force are due to an interaction. Okay, so uh, you can see on your screen, that is, suppose a man is standing behind a stationary car, and you can see figure 11.2a. This one is the figure. Okay, suppose a man is standing behind a car, figure 11.2a. Now, will the car move due to his presence? This one is the question. Okay, suppose the man now being to push the car in figure 11.2b, that is, he apply a force on it. So student, you can see here, this one is the person who is standing behind this car. Now if he is standing behind this car, the question is, will the car move due to his presence? And I'm sure you know the answer, and that is no. If a person is standing behind a car only due to his presence, will be no motion in the car. Okay, now if we try to push the car, there is some possibility of motion of the car. There is some possibility of motion in the car if he apply very large force and there is very less friction between the tire of the car and the road, or in some any different cases. And there is another possibility that there is no motion in the car if he cannot apply a very large force. Okay, so let's see. This one is the figure actually 11.2b, in which the person is trying to push the car. Okay, now you can see another example, this one. Note that the man has to push the car to make it move. Now in 11.3 you can see 11.3 shows three situations that may be familiar to you. Can you decide who is pulling and who is pushing in these cases? तो स्टूडेंट, अभी हम लोग जो 11.3 में डिफरेंट केसेस देखने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 11.3a की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये है फिगर 11.3a. ओके, दिस वन इज द फिगर 11.3a. ओके, नाउ this one is 11.3b. You can see on the screen. Question is, who is pulling whom? Okay, and next you can see 11.3c. This one is 11.3c. Again the same question, that is, who is pulling whom? You can see here in 11.3c, from these examples we can infer that at least two objects must be interact for a force to come into play. Thus
an interaction of one object with another object result in force between the two object. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंक्लूज़न है हमारा इन सभी 11.3a 11.3b 11.3c जो 3 केसेस हैं उन सभी केसेस में क्वेश्चन आपके सामने सेम था और वो क्वेश्चन था हु इज़ पुलिंग होम. ओके, तो इन सभी केसेस को अगर हम देखें यहाँ पे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं वो सभी में अगर देखें तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे. तो ये यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है. फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट must interact for a force to come into play. Thus an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. Okay. Now we are ready to understand the concept that is exploring forces. Okay, so let us try to understand these by using one of the activity, that is activity number 11.2. You can see this activity text on your screen. Okay, so let me read the statement first and then I will explain you. So you can see, choose a heavy object like a table or a box which you can move only by pushing hard. Try to push it all by yourself. Okay, now question is, can you move it? Now ask one of your friend to help you in pushing it in the same direction, that is in figure 11.4a. Is it easier to move it now? This one is again a question. And can you explain why? This one is another question. So I hope you understand. You can see here, this one is a box. Okay, and in first case one of the person who is wearing suppose yellow shirt, you can see, and green pant, first one. Okay, who is trying to push the box but he was not able to push the box alone. Okay, after that one another boy helping him to push the box in the same direction. Then what happened? इस केस में क्या होगा? क्या उस बॉक्स को पुश करना इजी हो जाएगा या नहीं होगा? इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. देखिए स्टूडेंट्स, चीज़ें इजी भी हैं, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है, आप बिना जाने भी ऐसी चीज़ें करते हैं. अगर आपको बॉक्स किसी डायरेक्शन में पुश करना है, कोई एक पर्सन उसको पुश कर रहा है, तो आप किस डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे? यू कैन यूज़ योर बेसिक नॉलेज. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर इस बॉक्स को पुश करना है तो क्या आप इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में ले जाना है, तो आप किस डायरेक्शन से इसको पुश करेंगे? ऑफ कोर्स इसी डायरेक्शन से पुश करेंगे. अब कोई और आता है, अगर वो आपकी हेल्प करना चाहता है तो वो भी आपके ही डायरेक्शन से उसको पुश करेगा. इमेजिन करिए कि वो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन से पुश करने लग जाए, तो क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, ये आपको जनरली आप इस ऐसे ही करते हैं. अगर इसको पुश करना है तो आप उसी पर्सन की फोर्स की डायरेक्शन में अपना फोर्स ऐड कर देते हैं जिससे कि वो बॉक्स इजीली मूव करने लग जाए. अगर आप नहीं चाहते हैं कि पुश करे तो आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड. यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 11.4b. डज द ऑब्जेक्ट मूव? क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करेगा? अब ये क्वेश्चन है. इफ इट डज, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव. ओके, देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास हैं नहीं है, हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, बट यू शुड ट्राई टू राइट द आंसर्स बाय योर सेल्फ, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम गिवन इन दिस सिचुएशंस. ओके, कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स? तो यहाँ पे आपको गेस भी करना है कि कौन लार्जर फोर्स अप्लाई करेगा. यहाँ पे फिगर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 11.4a की अगर बात करें,
ए में देखिए, टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड इन द सेम डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, इन बी इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों ने फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, जबकि यहाँ पे दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? In this game, two teams pull at a rope in opposite directions. 11.5. Members of both the team try to pull rope in their direction. Okay, so sometimes the rope simply does not move. ओके कई बार जो रोप है वो सिंपली मूव नहीं करती। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन सोन इन 11.3b? क्या ये जो सिचुएशन है वो 11.3b जैसी ही है या नहीं है, उसको हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाई अ लार्ज फोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू, अगर आप इस को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, सो यू मस्ट अप्लाई फोर्स लार्जर देन द वन अपोजिट टीम, यू कैन से। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ यू वांट टू विन द गेम यू शुड अप्लाई लार्जर फोर्स देन अनदर टीम। व्हाट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी जो डिस्कशंस हैं इनसे हमको फोर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर के लिए, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन एन अदर। ओके, सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए तो वो दोनों फोर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, नाउ recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction, activity 11.2। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए yes the box will move faster, या easily उसको हम लोग पुश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, if the two forces act in opposite directions on an object, the net force acting on it is difference between the two forces। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने टू फोर्सेस अप्लाई किया हुआ है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आपने एक डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया है, किधर अप्लाई किया है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो नेट फोर्स उस पर यूज़ होगा। ठीक है, what did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? ठीक है, तो इस केस में अगर आप दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो बॉक्स वहीं पे रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। किसी ने अगर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया है तो जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई किया हुआ है उसी डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगा। ओके, नाउ रिकॉल दैट इन द tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction। यहाँ पे देख सकते हैं टग ऑफ वॉर जो गेम है उसमें अगर दोनों ही टीम्स इक्वल फोर्स अप्लाई करती हैं तो जो रोप है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वहीं रहती है और गेम कोई नहीं जीत पाएगा। गेम जीतने के लिए आपको लार्जर फोर्स अप्लाई करना ही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन अदर are equal to each other. The strength of a force is usually expressed by its magnitude. We have also specified the direction in which a force acts. Also, if the direction or a magnitude of the applied force changes, its effect also changes. तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग एक्सप्रेस्ड करते हैं उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। सिर्फ फोर्स अप्लाई करना ही कंपलसरी नहीं है,
सॉरी सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी डायरेक्शंस को भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो उस पर हमें किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, अगर आपका कोई हेल्प करना चाहता है तो उसे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए, ये सभी मैटर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ। तो अगर आप लार्जर अमाउंट में फोर्स किसी रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आपको एक फोर्स भी अप्लाई करना है, उसके साथ उसे एक सही डायरेक्शन भी देनी है, ठीक है। तो इट मीन्स फोर्स के लिए अगर हम देखें तो उसकी स्ट्रेंथ जो कि उसकी मैग्नीट्यूड और उसका जो डायरेक्शन है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उस केस में आप अगर आपने सही यूज़ किया है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें यू कैन सी हियर द टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे दो फोर्स, दोनों जो पर स्टूडेंट्स हैं या जो भी चिल्ड्रेन हैं वो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इनका जो फोर्स है वो ऐड हो जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स इस पे जो लगेगा वो इन दोनों के फोर्स के सम के इक्वल लगेगा। तो सपोज दोनों ने अगर 10 न्यूटन फोर्स यूज़ किया है, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है जिसमें फोर्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे अगर दोनों ने 10 न्यूटन फोर्स यूज़ किया है तो नेट फोर्स इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में लगेगा 20 न्यूटन, ठीक है। अब अगर बी केस की बात करें हम, इस केस में दोनों ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, मीन्स दोनों 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉक्स पे नेट फोर्स 0 लगेगा और ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इधर का फोर्स ग्रेटर है सपोज, ठीक है, सपोज लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट है उसका फोर्स ग्रेटर है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो राइट साइड में मूव करने लग जाएगा। ओके, और अगर जो फोर्स है वो राइट साइड का ग्रेटर है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करने लग जाएगा। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि फोर्स कितना लगाना है और कौन सी डायरेक्शन में लगाना है, ये दोनों बातें ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा समराइज रिजल्ट हुआ। जनरली जिसको हम बोल सकते हैं, जो जनरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउ एवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे एक साथ बहुत सारे फोर्स वर्क कर सकते हैं, बट इस पे जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो इन सभी फोर्सेस का नेट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये, ठीक है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, कब फोर्सेस ऐड होंगे, कब फोर्सेस को डिफरेंस करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की फोर्स के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट उसकी डायरेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी फोर्स को कौन सी डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं और आपका एम क्या है। तो एम के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स के मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है उसको मैनेज करते हैं। और इसी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग अब एक एक्टिविटी को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ एक्टिविटी विच इज़ गिवन 11.3, और यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं वो दैट इज़ 11.4, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। तो यहाँ पे ये हेडिंग है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मीन्स बाय अप्लाइंग फोर्स यू कैन चेंज द रेस्ट ऑफ स्टेट टू रेस्ट ऑफ मोशन, और टू रेस्ट ऑफ मोशन टू रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, और स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसके बारे में यहाँ पे टॉपिक है, अ फोर्स can change the state of motion. So let us now find out what happens when a force act on an object. तो क्या होगा अगर किसी
फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें। तो देखते हैं कि एक्टिविटी 11.3 में आपको क्या मिलता है और आप क्या समझ सकते हैं। वैसे एक्टिविटी बहुत ही आसान है और आप आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बॉल की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट के पास एक बॉल तो इजीली अवेलेबल होगी। तो देखते हैं क्या है एक्टिविटी 11.3 में। जैसे जैसे यहाँ पे बताया जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी को खुद से परफॉर्म कर सकते हैं एट योर होम। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, सिर्फ एक बॉल की रिक्वायरमेंट है और आपके पास बॉल ज़रूर होगी। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो भी आप किसी और चीज़ का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एक्टिविटी 11.3 में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर। तो आपको एक बॉल लेना है और उसको किसी टेबल या फिर कंक्रीट फ्लोर पे रख देना है। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, और बॉल को धीरे से लेवल जो रोड जो भी फ्लोर है उसी पे धीरे से उसको पुश कर देना है। ठीक है। डज द बॉल बीइंग टू मूव, क्या बॉल मूव करेगी? हमें उम्मीद है कि आपका आंसर यस ही होगा। यस, जरूर मूव करेगी। नाउ पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग। अब बॉल को फिर से मूव करना है जबकि वो मोशन में ही है। ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, अगर आपने बहुत तेज़ी से उसको पुश किया है तो उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, अगर आपने बॉल के मोशन के डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई किया है तो जो बॉल है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने जो बॉल है उसको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में पुश किया है तो आप तो जो बॉल है वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होगी और वो रुक जाएगी। ठीक है। Now you can see here. Next, place your palm in front of the moving ball and remove your palm soon as the moving ball touch it. Okay? तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा उसमें एक्टिविटी को दूसरे पार्ट में चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, एक मूविंग बॉल के पाथ में अपने पाम को प्लेस करना है। देन रिमूव योर पाम एज सुन एज मूविंग बॉल टचेज इट, और जैसे ही बॉल आपके पाम को टच करती है आपको अपने हाथ को वहाँ से मूव करना है या यू कैन से रिमूव करना है। ठीक है। डज योर पाम अप्लाई ए फोर्स ऑन द बॉल, क्या आपके पाम ने कोई फोर्स अप्लाई किया है बॉल पे? डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, ये क्वेश्चन है। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ? डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? And what would happen if you let your palm hold the moving ball? तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। जैसे किसी मूविंग बॉल के रास्ते में अगर आप अपना पाम लगाते हैं तो निश्चित है कि उस बॉल की जो स्पीड है उसमें डिक्रीज हो जाएगी। कई बार वो स्टॉप भी हो सकती है या हो सकता है कि उसकी स्पीड कम हो जाए और वो मोशन में रहे अगर वो बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस फॉर एग्जाम्पल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल, द प्लेयर अप्लाई ए फोर्स on the ball. Before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0. The applied force makes the ball move towards the goal. Suppose the goalkeeper dives or jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving the ball. The force applied by him can stop or deflect. So you can see here the force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeed in stopping the ball,
its speed decreases to 0. तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि किसी पेनल्टी का एग्जांपल है यहाँ पे। यहाँ देखिए, while taking a penalty kick in football the player apply a force on the ball before being hit. The ball was at rest. जब तक उसको हिट नहीं किया गया था, बॉल रेस्ट में है क्योंकि उसकी स्पीड ज़ीरो है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ इन रेस्ट। जब तक हिट नहीं किया गया उसको, इट मीन्स उसकी स्पीड ज़ीरो है। द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव्स टूवर्ड्स द गोल। अब अगर आप उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो बॉल है वो गोल की तरफ ट्रेवल करने लगेगा। इट मीन्स आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा। ठीक है। सपोज द गोल कीपर डिव्स और जंप अप टू सेव द गोल। बाय हिज एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द मूविंग बॉल। The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. Okay. Now, these observations suggest that a force applied on an object may change its speed. If the force applied on an object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in decrease in the speed of the object. Okay, so I hope you understand. You can see here this is the basic one of the basic example of applying force on an object in the same direction. I have seen children competing with one another in moving a rubber tire of a ring by pushing it. 11.7. I now understand why the speed of the tire increases whenever it is pushed. तो जब भी टायर को हम लोग पुश करते हैं तो उसकी स्पीड कैसे चेंज हो जाती है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। तो आपको पता है जब इस टायर पे बार बार फोर्स एक डायरेक्शन में ही अप्लाई किया जाएगा तो इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगी, और यू कैन से द वेलोसिटी विल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली। ओके, now Paheli is curious to know whether application of force can only change the speed of an object. So let us find out. So now we are ready to understand activity 11.4. So let's see what is this activity. Student, before starting this activity I want to tell you one thing. Try to solve the questions given in this exercise. Okay, try to solve the questions given in this exercise and related to the topics which we have already discussed. Student, we will complete the question answer in the last session of this chapter, but you can try to complete by yourself, and I am sure most of you will be able to complete these things by yourself. Okay, so do hard, do practice and try to complete homework on time and try to discuss the doubts which you have related to the topics. Okay, so you can see activity 11.4 here. Student, try to read this activity by yourself, and because these activities needs only a ball and you can perform these type of activities by yourself. You can use something different at the place a ball that will also give the similar result, so you can understand the concept of force in different cases. So try to do these things and try to perform these simple activities by yourself at your home
so it will be also part of your questions and exercise. So let's see. टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल. तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बॉल लेना है और उसको एक टेबल पे प्लेस कर देना है. यू डिड इन 11.3. एक्टिविटी 11.3 में भी हमने इसी टाइप का वर्क किया हुआ है. ओके, सो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे टाइम बाउंडेशन है, तो हम लोग इस एक्टिविटी को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग. Okay.